Hello, friends. A very greeting to you all. This is Pratiksha Avasti, and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. So, in this video, we will discuss about a very important topic, that is models of communication. And I think आप लोगों को पता होगा कि most of the students होते हैं, उनके questions होते हैं like models of communication and the process of communication are the same. क्या ये दोनों जो क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं एग्जाम में, क्या ये सेम ही क्वेश्चन है? क्या आंसर्स हमें एक सेम ही लिखना होगा इसमें? बट नॉट एट ऑल. मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज टोटली different. So in this video we will discuss about the models of communication, and in the next video we will discuss about the process of communication deeply. So in the last video we have discussed about the forms of communication, jiska part that is non-verbal communication. So we have discussed all the forms of communication briefly, that is formal communication, informal communication, verbal communication and non-verbal communication. In the verbal communication we have discussed about the two topics, that is oral communication and the written communication. We have discussed in the separate videos, हमने डिस्कस किए थे लाइक ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, एंड डेफिनेटली वी हैव डिस्कस अबाउट रिटन कम्युनिकेशन एज वेल. एंड फिर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी डिस्कस किया था इन अ सेपरेट वीडियो. बट वी हैव नॉट डिस्कस दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बिकॉज क्योंकि वो हम यूनिट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में. Formal communication we will discuss briefly, and definitely we will discuss informal communication briefly. So our today's topic is, that is model of communication. So without wasting any time, let's go to the topic, that is model of communication. If अगर मैं models of communication की बात करूँ, तो models of communication divided into 3 parts, that is linear model of communication, second is transactional model of communication, and third one is interactional model of communication. So अगर मैं linear model of communication की बात करती हूँ, तो linear model of communication is the process जहाँ पे feedback is not included. ये one way of communication process होता है. Now the time for second model of communication, that is transactional model of communication or interactional model of communication. तो अगर मैं interactional model of communication की बात करूँ, तो here both the parties are interacting with each other. तो interactional model of communication एक ऐसा process है जहाँ पे feedback is included, but then also जो feedback का जो process होता है वो at the same time आपको नहीं मिलता. But in the ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज वहाँ पर टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है. एंड सेकेंड थिंग, आपका फीडबैक इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. एंड थर्ड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कि आपका जो फीडबैक है वो आपको एट द सेम टाइम मिलता है. तो नाउ वी विल डिस्कस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ब्रीफली पॉइंट वाइज. सो द डेफिनेशन ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मेकिंग द व्हाट फ्रेमवर्क, हेल्प्स इन मेकिंग द फ्रेमवर्क that explain the process of how informations, ideas and emotions are exchanged between individuals. So model of communication क्या रोल प्ले करता है? इट हेल्प्स यू टू मेक दी फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर बनाने में, एक फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है. दैट इज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. क्यों करता है? बिकॉज दैट एक्सप्लेन दी प्रोसेस, जो आपके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. इन व्हाट वे? इन लाइक इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे, योर आइडियाज़ के बेसिस पे एंड योर इमोशंस के बेसिस पे, एंड एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल पर्सन को जब आप अपने इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेमवर्क के बेसिस पे, इन अ सिस्टमैटिक मैनर के बेसिस पे,
बाय मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट, इसका पॉइंट है दैट इज दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर वे टू अंडरस्टैंड द वेरियस एलिमेंट्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। क्या है? दे प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करते हैं अ स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं। वे टू अंडरस्टैंड द वेरियस एलिमेंट्स, हर एक अलग अलग एलिमेंट्स को समझने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि हम क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अभी हमने नॉर्मल सा क्या डिस्कस किया, हमने एक ब्रीफ डिस्कस किया, दैट इज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या करता है, फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। क्यों करता है? बिकॉज इट शोज अ प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशंस, योर आइडियाज, योर इमोशंस और योर वैल्यूज। क्यों? एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पीपल के। क्यों? बिकॉज ये प्रोवाइड करेगा आपके स्ट्रक्चर्स को, किस लिए? आप वेरियस एलिमेंट्स को समझ सके। क्यों समझ सके और कैसे समझ सके? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के बेसिस पे और कम्युनिकेशन के थ्रू आप ये सारे प्रोसेस को समझ पाए। तो ये क्या था? मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द स्टार्टिंग, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट कॉमन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दैट इज, फर्स्ट इज योर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वेयर feedback is not included. Feedback is not feedback not included. And in the interactive model of communication, this is two-way process. Two-way process, and linear model of communication is one-way process. And in interactive model of communication, feedback is included. And in the transactional model of communication, same चीज, two-way process and feedback is included in this as well. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेम चीज. But then also interactive model of communication and transactional model of communication is totally different. ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से तो हमें समझ में आ ही रहा है कि फीडबैक इसमें इंक्लूडेड है नहीं, and it is one way process. So definitely linear model of communication, interactive model of communication and transactional model of communication से different है, तो इसको हम इन दोनों में ऐड करते ही नहीं है. Now we will discuss about interactive model of communication. The interactive model of communication included two things, that is two-way process and feedback is included. Same चीज in transactional model of communication also. This is also two-way process and feedback is included, but in interactive model of communication जो feedback है is not in the same time, but in transactional model of communication feedback क्या है, आपको उसी वक्त मिल जाता है. तो interactive model of communication क्या होता है? It is a time taking process. हम यहाँ लिख सकते हैं time taking process, but
Transactional model of communication is not a time taking process, not a time taking process. And as compared to all three models of communication, transactional model of communication is the like best way. हम बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा जो मॉडल है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है नाउ टाइम, सो नाउ डेज, सो ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो क्या क्या मॉडल्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के? सो वी विल डिस्कस, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं. लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट इज ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सो हम डिस्कस करेंगे अपना पहला मॉडल, दैट इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सो द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, आप ये स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ देखिए, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर इज इंक्लूडेड, मैसेज इज इंक्लूडेड, रिसीवर इज भी यहाँ पर है, एंड नॉइस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. बट इफ आई टॉक अबाउट द फीडबैक, तो यहाँ पर क्या है, फीडबैक इज नॉट इंक्लूडेड, जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया था कि फीडबैक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं होता है. सो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब अ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, मैंने बताया था कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस है फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर विदाउट फीडबैक और इंटरेक्शन. जहाँ पे आप अपने रिसीवर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी फीडबैक नहीं ले रहे हैं, बस आपका मेन मोटिव है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो मैसेज है, वो रिसीवर तक पहुंच गया. अब उसने समझा या नहीं समझा, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हैं. ये क्या हो गया, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हम अगर फॉलो करते हुए जाए तो एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है. मे भी हो सकता है कि आपने जो सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया है वो प्रॉपरली पहुंचा ही नहीं हो, जो सेंडर मैसेज देना चाह रहा है वो वहां तक पहुंचा ही नहीं. जब तक आप फीडबैक ही नहीं लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या मैसेज वहां तक पहुंचाना चाह रहे थे. तो ये क्या है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में. क्यों? क्योंकि इसमें वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा फीडबैक भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस, इसमें 2 पॉइंट्स और इंक्लूडेड हैं, दैट इज दिस मॉडल एम्फेसाइज द मैसेज बीइंग सेंड एंड इट्स डिलीवर rather than the entire communication process of the impact on the receiver. जो हमने डिस्कस किया कि ये मॉडल क्या है, मोटिव रहता है इस मॉडल का, दैट इज जो आपका मैसेज है वो सेंड हो गया है, डिलीवर हो गया है, ना कि फोकस देते हुए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है आपके रिसीवर पे. जो रिसीवर है आपका, उसका क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है और आपके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. तो इसमें लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, मेन मोटिव उसका हो रहा है कि हाँ मैंने मैसेज सेंड कर दिया है, डिलीवर हो गया है मैसेज, बट उसको कोई भी फोकस नहीं है रेदर देन द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका रिसीवर के ऊपर, आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है या फिर आपको नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है, वो इस पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है. उसका मेन मोटिव है कि हाँ जो मेरा मैसेज था वो मैंने सेंड कर दिया है, अब जो रिसीवर हैं वो वेल अंडरस्टूड है या नहीं है, दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये प्रोसेस क्या है, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है. मीन्स सेंडर ही इसमें एक्टिव है, उसने वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया, एंड रिसीवर इज नॉट अ एक्टिव पार्ट इन दिस.
दूसरा लैक ऑफ फीडबैक, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि फीडबैक का पार्ट, फीडबैक का इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं है। सपोज मैंने आपको कोई मैसेज दिया, अब वो मैसेज आप तक पहुंचा भी है या नहीं भी पहुंचा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं रखती। मेरा जो काम था, मेरा जो मोटिव था, मैंने वो चीज़ कर दिया। अब मैं आपके पास जब तक फीडबैक लेने नहीं आऊँगी तब तक आप वो चीज़ मुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये क्या है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को इसलिए हम लोग बेस्ट प्रोसेस में, बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये वन वे प्रोसेस है। दूसरा, ये एनालाइज नहीं करता है कि रिसीवर का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे फीडबैक इज नॉट इंक्लूडेड। सो वी हैव डिस्कस लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से समझ में ही आ रहा है, यू आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, सेंडर इज इंक्लूडेड, मैसेज एंड फीडबैक और चैनल इज ऑल्सो इंक्लूडेड, and even noise is also included and the receiver is also included। तो क्या हो रहा है, मैसेज आपका जा रहा है, फीडबैक आपको मिल रही है, चैनल किस चैनल के बेसिस पे जा रहे हैं, आप क्या चैनल चूज कर रहे हैं, रिसीवर उसको फीडबैक दे भी रहा है, एंड बीच में जो भी नॉइज आ रही है वो भी आप हैंडल करते हुए जा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, then this model of communication describe a two-way flow of information। तो ये जो मॉडल है वो क्या करता है, टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। कैसे, इसमें सेंडर एंड रिसीवर इन्वॉल्व हैं विथ फीडबैक। क्या, फीडबैक के साथ जो सेंडर ने अपना मैसेज दिया रिसीवर को, रिसीवर क्या कर रहा है, उसको फीडबैक भी दे रहा है। सो दिस मॉडल इज लेस फोकस्ड on the message itself and more on the ongoing interaction and the shared meaning generated between participants। तो ये मॉडल क्या करता है, फोकस कम रखता है किस पे, कि मैसेज जो है कि एक ही प्रोसेस के बेसिस पे जाए। वो ऑनगोइंग इंटरेक्शन रखता है कि रिसीवर भी इंटरेक्ट कर रहा है एंड सेंडर भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ क्या क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ ये डिस्कस किया कि ये टू वे प्रोसेस है, एक दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, चैनल, मैसेज, नॉइज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बट देन ऑल्सो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल से क्यों डिफरेंस हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट स्लाइड। हम इस नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे कैसे। लाइक टू वे प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, मॉडल का जो प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ लीनियर। यहाँ पे क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन नहीं है, मीन्स वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इसमें नहीं है, बट दी रेदर अ बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज वेयर बोथ पार्टीज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम one place to another। मीन्स कभी आप दो पार्टीज इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेंडर ने रिसीवर को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, रिसीवर ने उसको फीडबैक दिया, मीन्स इंटरेक्शन प्रोसेस चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है, बोथ आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। क्योंकि लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये वन वे नहीं है, बोथ द पार्टीज आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। हम सेकंड में आते हैं, फीडबैक इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस बट सम टाइम इट इन्वॉल्व्स अ स्लाइटली लेस इमीडिएट फीडबैक प्रोसेस। अब हम आ गए हैं कि इंटरेक्शनल मॉडल जो है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल से डिफरेंट क्यों है। वो इसलिए डिफरेंट है, फीडबैक तो इंक्लूड है इसमें, बट कभी कभी क्या होता है, सम टाइम इट इन्वॉल्व्स अ स्लाइटली लेस इमीडिएट फीडबैक प्रोसेस। जो फीडबैक जो प्रोसेस हमें जो मिल रहा है वो हमें इमीडिएट नहीं मिल रहा है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हो सकता है आपने जो इन्फॉर्मेशन आज दी है, मे बी आपको फीडबैक इवनिंग तक मिले, मे बी हो सकता है फीडबैक आपको आफ्टर 2 days मिले,
आफ्टर 1 वीक मिले, तो तब तक क्या है, आप अपने बाकी डिसीजंस को नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए एक डीमेरिट का काम हो जाएगा। आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है टाइम टू टाइम नहीं कर सकते, बिकॉज आप अभी डिपेंडेंट हैं। जब तक फीडबैक नहीं आएगा, हम आगे के प्रोसेस पे वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इमीडिएट फीडबैक प्रोसेस नहीं है। दैट्स वाई दिस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इसका थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया, chat rooms, and email for back and forth exchange and feedback. अब इसमें ये है, ये जो इसका जो फीडबैक है वो इमीडिएट क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो सेंडर और रिसीवर जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। इफ़ दे आर कम्युनिकेटिंग लाइक फेस टू फेस, अगर वो कम्युनिकेट करेंगे, फीडबैक क्या है, ऑन द स्पॉट उनको मिल जाएगा, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। बट इन इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, चैट रूम्स के थ्रू कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है, एक तरीके से टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपने किसी को अभी कुछ मैसेज किया या फिर कुछ मेल किया, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन अभी इसी टाइम एक्टिव है। मे भी हो सकता है वो आपका मैसेज कुछ टाइम के बाद देखे, उसके बाद वो आपको फीडबैक दे। इसलिए ये प्रोसेस क्या है, फीडबैक तो इंक्लूडेड है इसमें, बट आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलती, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस इन ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी इन इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस इन दिस कि ये 2 वे प्रोसेस होता है, फीडबैक इसमें इंक्लूड होती है, ये अपने मैसेज पे भी फोकस करते हैं, ये डिपेंड नहीं रहते कि हाँ मैंने मैसेज दे दिया मेरा काम ख़त्म हो गया, नॉट एट ऑल, वो फीडबैक पे भी फोकस करते हैं। इसमें सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक, चैनल, नॉइज, एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड। बट ये क्या है, ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, इसलिए इनका जो फीडबैक का प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। इसलिए फीडबैक इनको क्या है, इमीडिएट नहीं मिलती। तो इसलिए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का जो सेकंड मॉडल वी हैव डिस्कस, इसको भी हम लोग बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ लास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने क्या क्या मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अभी डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस linear model of communication and the interaction model of communication. In the linear model of communication we have discussed कि ये 1 way process है, feedback is not included and more motive है कि information message जो है वो हमने send कर दिया है। But we have discussed in the transactional model of communication कि वो 2 way process है, feedback is also included, channel is also included, but then also क्या है कि वो बेस्ट मॉडल में काउंट नहीं होता, बिकॉज जो फीडबैक है वो इमीडिएट आपको नहीं मिलती। सो इसलिए हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ आवर लास्ट मॉडल, दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वी विल फाइंड आउट कि ये मॉडल बेस्ट है कि नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। सो लेट्स डिस्कस आवर ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। So transactional model of communication emphasize the dynamic ongoing nature. ये किस पे फोकस करता है? डायनेमिक ऑनगोइंग नेचर पे फोकस करता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंजेस आते रहना, डायनेमिक इन नेचर, चेंजेस को अडॉप्ट करना, उसके बेसिस पे वर्क करना। So where messages are continuously exchanged and both parties influence each other simultaneously. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बोथ दी पार्टीज जो हैं वो अपने मैसेजेस को कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं, बोथ द पार्टीज इन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर है
पूरा सिमिलर है आपके इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह। जैसे सेंडर इज इंक्लूडेड, उसमें भी इंक्लूड था, रिसीवर है, इसमें मैसेज है, आपका फीडबैक है, आपका चैनल है एंड आपका नॉइस है। सो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कि ये बेस्ट मॉडल है कि नहीं है। तो क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, बोथ द पार्टीज इंक्लूडेड इन दिस, और कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बोथ द पार्टीज अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे, साइमल्टेनियसली इन नेचर। सो इसके कुछ पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, पहला क्या है, ये टू वे प्रोसेस है। इफ आई टॉक अबाउट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, वन वे प्रोसेस था। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, टू वे प्रोसेस था। एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो भी टू वे प्रोसेस है। तो सेम चीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। द ट्रांजैक्शनल मॉडल टिपिकली emphasize फास्टर फीडबैक देन द इंटरेक्शन मॉडल। ये क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो फास्टर फीडबैक देता है एज कंपेयर टू इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से। तो इसका जो फीडबैक है वो इंटरेक्शन मॉडल के कंपैरिजन क्या है, फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि इंटरेक्शन मॉडल क्या था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शनल क्या कर रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो फीडबैक क्या होगा, वो फास्टर होगा। दूसरा पॉइंट, आई मीन थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस, दैट इज कंटिन्यूअस फीडबैक। अगर हम कंटिन्यूअस फीडबैक की बात करें तो लीनियर मॉडल में क्या है, फीडबैक है ही नहीं। इंटरेक्शन मॉडल में क्या है, जो फीडबैक है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज वो आप एक्टिव है, सेकंड पर्सन एक्टिव है भी या नहीं है, यू डोंट नो। बट इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस फीडबैक है। कंटिन्यूअस फीडबैक इसलिए है, आपने यहाँ पे किसी के साथ कम्युनिकेट किया, सपोज यहाँ पे सेंडर एंड द रिसीवर आर इंक्लूडेड, यहाँ पे दो लोग इंक्लूड हैं यहाँ पे। तो सेंडर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, रिसीवर सेंडर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। कभी जो सेंडर है वो रिसीवर बन जा रहा है, रिसीवर है जो कभी सेंडर बन जा रहा है। तो यहाँ पर हम इनको सेंडर और रिसीवर के नाम से नहीं बोलते, हम यहाँ पे इन दोनों को कम्युनिकेटर के नाम से बोलते हैं। कम्युनिकेटर के नाम से हम इन लोगों को बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस फीडबैक है, बिकॉज ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी टाइम एंड फीडबैक उसी टाइम आपको मिल जा रहा है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोसेस हो गया, बिकॉज दे आर नॉट सेंडर एंड द रिसीवर, दे आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम उनको फीडबैक मिल रहा है, वो द पार्टीज इंक्लूडेड इन द सेम टाइम। तो दे आर नॉट नोन एज अ सेंडर एंड द रिसीवर, उनका न्यू नेम क्या है, दैट इज कम्युनिकेटर। फोर्थ पॉइंट की बात करूं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, बोथ द पार्टीज सेंडर एंड द रिसीवर, वो क्या है, एक्टिव हैं। बोथ द पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग एंड मेकिंग प्रोसेस। जिस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे वो डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मीनिंग में। जो भी डिस्कशन है वहाँ पे, जो भी आप जिस चीज़ के डिसीजंस लेने जा रहे हैं, उसका एक मीनिंग निकल कर आए। कैसे आए, क्योंकि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। अगर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है, सपोज एज अ सेंडर मैं वहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, कुछ पार्टिसिपेट कर रही हूँ किसी मीटिंग में, तो वहाँ पे जो जितने भी ऑडियंस प्रेजेंट है वो उसी वक्त क्या कर रहे हैं, उसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है हमारा, वो क्या है, फास्टर है। फास्टर है क्यों है, क्योंकि बोथ दी पार्टीज आर एक्टिव। इसमें क्या है, बोथ दी पार्टीज आर एक्टिव इन दिस। फिर है हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं, वहां पर भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं, वहां भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट दी ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ क्या हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है।
फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, इन दिस मॉडल पार्टिसिपेंट्स आर नॉट नोन एज सेंडर एंड द रिसीवर, दे कॉल्ड एज अ कम्युनिकेटर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया था कि सेंडर एंड रिसीवर, उनको सेंडर एंड रिसीवर के नाम से क्यों नहीं बोला जाता, उनको कम्युनिकेटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज एट द सेम टाइम जो सेंडर है, सेंडर एंड रिसीवर है, वो कभी एट द सेम टाइम वो रिसीवर भी बन जाता है सेंडर, एंड एट द सेम टाइम रिसीवर जो है वो सेंडर भी बन जाता है। तो इसलिए हम इनको सेंडर एंड रिसीवर के नाम ना देकर हम इन्हें किस नाम से बोलते हैं इसमें, दैट इज़ कम्युनिकेटर, हम इन्हें कम्युनिकेटर कहते हैं। तो इसलिए एज कंपेयर टू बाकी के दो मॉडल से अगर मैं ट्रांजैक्शनल मॉडल को कंपेयर करूं, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है हमारा बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट माना गया है, बेस्ट मॉडल है कम्युनिकेशन का। क्यों है? बिकॉज इसमें फास्टर फीडबैक है, कंटिन्यूस फीडबैक है, टू वे प्रोसेस है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, और जो पार्टीज हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोथ आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड बोथ आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, उनको फीडबैक भी मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी फास्टर हो रहा है, एंड आप काफ़ी टाइम को सेव कर पा रहे हो एंड अपने डिसीजंस को ले पा रहे हो। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो, हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, we have discussed about the three models of communication, or we can say that three common models of communication. क्या क्या? Linear model of communication, second is transactional model of communication, and the interaction model of communication. So I think आपको सारे तीनों models of communication काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, and in the next video we will discuss about the why these three models of communication is very important nowadays. So thank you so much once again for watching this video. Thank you all.